हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत हियर? The panchayat can be discharged their function essentially only if they have a sufficient financial resource. The financial resource is the most important for the all person. The development of the resource. For resource of panchayat depend mainly on the grant from state government. There is a dependent by there is a mainly on the grant from a state government. They have also have a taxation power and have a some income from a earned by the vested assessed. They may be get a share in the taxes, duties, tolls and fees that are there is collected by their state government. Let us now see that a financial resource panchayati have to be perform their function. The next point here is the most important. The Gram Panchayat is the most state of power of the aligning tax in the vested the Gram Panchayat. House tax, tax on the cattle is employable properties and the commercially crop, drainage tax, sanitation fees, tax on produce, in the village, fee for supply of water to the households, and the lighting tax and some of the taxes and fees levied by the panchayat. Panchayat can be levied of entertainment tax on the temporarily, sanitation is a theaters, taxes on the animal and non-medically is a prohibited vehicles paid for the hire. The Gram Panchayat also receive fund or the income from a property owned by them a common is a grounds, jungles, cattle grounds, etc. The sale or produce of dung, other refuse and the careless and dead body of animal is also returned by the Gram Panchayat. They also receive their share in the land revenue from the state. The next year source of Panchayati Samiti. Panchayat Samiti can improve a tax on facility provided by them as a water, drinking or irrigation purpose and the lighting irrigation toll of the bridge maintaining by them. The property of the Panchayat Samiti include a public building, public road construction are maintained out of their fund and all land or other property transferred to them by their government. The Panchayati receive income from the property vested in them and they also receive a grant form of state government. Fund are transferred by the Jila Panchayat or state government. The next and the last year is a source of Jila Parishad. The Jila Parishad are also authorized to the impose of taxes and they may be imposed of tax on the person carrying on the business in the rural area for a 6 month. Tax on the brokers is a commissions agent in the market established by them and also tax on the sale of goods in these markets. Tax on the land review can also imposed by the Jila Parishad when development teams are interested of them. Necessary funds are also provided and they also receive grant from the state is a donation from the charitable institution and may also rise to the loan. There is a most important for a source of income of पंचायत. यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायत की आय का स्रोत। देखिए पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है। आपको अगर हमने अभी पढ़ा भी है कि 3 टायर्स, तो देखिए 3 टायर्स के अंतर्गत ही जो होगा आय का स्रोत आएगा ना, ये तो जनरल सी बात है। तो कहते हैं पंचायत अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। देखिए जब तक वित्तीय संसाधन नहीं होगा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति के लिए पैसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि तभी तो वो विकास के कार्य के लिए करने के लिए आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए सरकार अगर पैसे नहीं दे रही है तो वो कहाँ से कर लेंगे। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये होती है कि सरकार की तरफ से पैसे तो दी जाती है प्रॉपर, लेकिन वो कहते हैं जिला स्तर पर पहुँचते पहुँचते जहाँ पर लोगों की भलाई के लिए चाहिए लगना होता है पैसा, वहाँ पर आधे से भी कम रह जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में करप्शन की एक बहुत बड़ी लंबी चैन है जिसको हर एक व्यक्ति जो है नकार नहीं सकता। इवन कि आप भी नकार नहीं सकते कि हर जगह जो है करप्शन भरा पड़ा है, तभी तो हमारे गाँव का इतना विकास नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है और उनके जो है आय के स्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उनका आय जो होती है उन्हें
हमारे से ही लेते हैं, यानी हमसे ही उन चीज़ों का जो है पैसे वसूलते हैं। कई क्षेत्र में आपने देखा भी होगा कि फ्री करने का प्रावधान किया गया है, सरकार की तरफ से फ्री बहुत कुछ दी जा रही है। तो ये पैसा कहीं और से वसूला नहीं जाएगा, आपसे ही वसूला जाएगा और आपका ही जेब ढीला किया जाएगा। तो वो कई रूप के टैक्स के रूप में हो सकते हैं, जो कि आप सीधा आपको ज्ञान इस बात की प्राप्त है। कहते हैं अगर देखा जाए हमारा पॉइंट के ऊपर, तो कहते हैं पंचायत ही अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। संसाधन के लिए पंचायत मुख्य राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितने पैसे उसको प्रोवाइड्स करते हैं। मैंने कहा भी था कि जैसे जैसे इस पैसा पहुँचता है, राज्य सरकार देती है, वैसे वैसे वो पैसे जो होते हैं धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उनके पास का कर लगाने की शक्ति भी होती है और अपनी अथवा निहित संपत्ति से भी कुछ आय प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए एकत्र किए गए टैक्स, शुल्क और प्रवेश कर में उन्हें जो है हिस्सा मिल सकता है। आइए हम देखें कि पंचायत के पास अपने कार्य करने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा 3 टास्क के अंतर्गत जो पंचायत ग्राम पंचायत के विषय में हमने चर्चा किया था, उनके पास जो है आय के स्रोत के रूप में कैसे प्रावधान होती है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया पंचायत जो है, ग्राम पंचायत में कैसे जो रहता है आय का सोर्स बनता है। देखिए अधिकांश राज्यों में टैक्स लगाने की शक्ति ग्राम पंचायत के पास ही होता है। गृह कर हो सकता है, पशुओं एवं अचल संपत्ति पर कर हो सकता है, व्यावसायिक फसलें हो सकती है, पानी निकास पर टैक्स हो सकती है, गांव में बेचे गए उत्पाद पर भी टैक्स हो सकती है, घरों में दिए गए पानी पर भी टैक्स है, प्रकाश उपलब्ध कराने पर भी टैक्स है। पंचायत द्वारा लगाए गए कुछ शुल्क पंचायत द्वारा लगाए गए कर होती है। पंचायतें अस्थायी रूप से लगे थिएटर पर भी, मनोरंजन पर भी कर लगा सकती है। पशुओं तथा अन्य किराए के लिए चलाए जाने वाले गैर यांत्रिक वाहनों पर भी टैक्स लगाने की प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों को उनकी संपत्ति जैसे मैदान, चरागाह, जंगल इत्यादि से भी आय के रूप में कोष प्राप्त होते हैं। गोबर, कूड़ा, जानवरों के मृत शरीर को बेचने से भी ग्राम पंचायत को आय का जो है प्रावधान हो जाती है। वो राज्य से भू राजस्व से भी अपना हिस्सा प्राप्त कर लेती है। तो ग्राम पंचायत के जो है अनुसार इन सारी चीज़ों से जो होता है उनको इनकम मिलती है, यानी आय प्राप्त होती है। उसके पश्चात है पंचायत समिति। देखिए पंचायत समिति से भी उनको पैसे जो है प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। पंचायत समिति अपने द्वारा प्रदान किए गए सुविधाओं पर टैक्स लगा सकती है, जैसे पेय जल के ऊपर टैक्स लगा सकती है, अथवा सिंचाई के लिए दिए गए पानी पर भी टैक्स लगा सकती है। प्रकाश प्रबंधन किया है उसके ऊपर भी टैक्स होती है। आपके अगर आसपास अगर बल्ब जल रहे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि सरकार ने आपको जो है बल्ब लगा के दिया या बल्ब जो है सरकार पैसा भरेगी। नहीं दोस्तों, ये पैसा आपको ही भरना है और आपके ही किसी न किसी रूप में आपको ही प्राप्त होगी। अपने प्रबंधन में रखे गए फूले इत्यादि पर से भी पैसे वो इकट्ठा कर सकती है। पंचायत समिति की संपत्ति में सार्वजनिक भवन, अपने कोष से निर्मित रख रखाव वाली सार्वजनिक सड़कें और सारी भूमि अथवा सरकार द्वारा स्थानांतरित अन्य संपत्ति सम्मिलित होती है। पंचायतें अपनी संपत्ति के आय प्राप्त करती है और राज्य सरकार का अनुदान भी प्राप्त करती है। देखिए ये अपना संपत्ति से भी आय प्राप्त करती है और सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान से भी प्राप्त करती है। जिला पंचायत और राज्य सरकार भी मध्यवर्ती स्तरों द्वारा लागू होने वाले योजनाओं के लिए पैसा स्थानांतरित करती है। यानी आपने देखा होगा कि अगर आपके पास खेत होगा तो उसको साल में एक बार जो है कराना पड़ता है एंट्री, तो उसमें आपके पैसे लगते हैं। तो वो सारे पैसे जो होते हैं टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है। कहते हैं टोल टैक्स उनसे भी लिया जाता है जो किसी सुविधा का प्रयोग करते हैं, इसलिए किसी पुल पर से गुजरने वाले से एक नाम मात्र की राशि पुल के टोल टैक्स के रूप में ली जा सकती है। तो ये भी प्रावधान किया गया। आपने देखे ही होंगे कई जगहों पर जो है टोल टैक्स बने होते हैं जहाँ पर आपसे पैसे उछले जाते हैं। उसके पश्चात अंतिम सोर्स जो होता है जिला परिषद के रूप में होता है। जिला परिषद भी टैक्स लगाने का अधिकार रखती है। वह 6 माह से ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करने वाले पर दलालों पर, उसके द्वारा स्थापित मार्केटिंग पे अडात करने वाले पर तथा मार्केट में सामान की बिक्री पर टैक्स लगा सकती है। जिला परिषद भू राजस्व में भी टैक्स लगाने की प्रावधान किया गया है। जब कोई विकास योजना उसे सौंपी जाती है तो आवश्यक जो है कोष भी प्रदान किया जाता है। ये राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती है अथवा धर्मस्थल संस्थाओं से दान प्राप्त कर सकती है और ऋण भी ले सकती है।